course, there should be cerebral cinema. I mean, there is. But not just cerebral. Not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral, wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be. It's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरिट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ. मैरिट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is, enjoy it like that. And dosa को pizza से मत compare करो. मत compare करो ना. I mean, Pizza Hut में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री. एंड आई थिंक पिछले 20 साल चेजिंग एज अ पंजाबी पराठा. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear. We have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into BC at affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable. Popcorn, please. Yes. Sharik साहब, Z Studios को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है, उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता. अनिल जी, आपको, सनी जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, because you all have come like oxygen for all single screen cinemas, all non-national multiplex chains. दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा. मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा, and I thought it was not just humor, it was a well observed statement कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. But let me tell you one more thing. 11th August was absolutely a red letter day for Z. ना सिर्फ Z की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन Z and Sony का जो मर्जर था, उस दिन NCLT ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now, I'd like you all to ask questions, but before you all start, sirf ek request, please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. So there is so much to talk about Gadar 2, you all don't need to meander here and there. Start. Yes. Hello? Yeah. Hi. Ek minute. Are mic di. Hi everyone, I'm Rahul Deville and I'm really thrilled to be over here, and they're at platform above me, which they should be. I mean, these people, including this kid, they deserve to be here. Rahul and me are Betab. And I was just coming to that. And Arjun and Dakat. Arjun and Dakat. I was just coming to that. When I made Arjun, I made Betab, I made Dakat with Sunny. I was very proud of these films. And I thought Sunny will never perform better than this. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gone and done the same thing again. I mean, when is he going to stop? It's brilliant. In today's time, that the greatest thing for me is to be on the stage and see this kid standing over here. It's really wonderful. And no, one has to. Bas beta. One thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. Gadar Prem. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me after seeing Gadar. And I narrated an idea to him which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day, and I called him up and I said, now we should reunite him. This was a film, Sunny, you remember it. Film I thought of was a film called Sunny Doll with
Sunny Deol did. It's a fantasy with the reality where Sunny would play, and all his avatars, which have been successful, would be part of it. क्या बात So that's the kind of thing which we really want to do, and now I think we'll do it absolutely. lovely And all the best, Sunny. You really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो father and son के scenes हैं इस फिल्म में, जब मैं वो देख रहा था, मुझे सनी और धर्मजीत सामने दिखाई दे रहे थे। क्या बात Because I have seen these two. तो मुझे सनी और धर्मजीत दोनों दिखाई दे रहे थे, और एक सीन था, डायलॉग वाला बहुत अच्छे से एक सीन था, जिसमें क्राउड में मैं अकेला खड़ा होकर ताली बजा रहा था, and I was laughing, people were looking at me. एक सीन है जब सनी भाग रहा है, पीछे तलवार लेके लोग भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं, और एकदम से रुक जाते हैं। सनी रुकता है, वो रुकते हैं, क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता, और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है। वो हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा। अरे, दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग टू डू, yes and God bless you all, and thanks. I'm sorry. thank you so much, and sir. now Thank you you can so ask questions and besides Dharmendra and Sunny Deol there are others also here Hello, hi, Pooja Nawat here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. सनी जी यहाँ पर Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। सनी जी आपसे मेरा हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी Amazon फ्रेश से न्यूज पर क्या कहेंगे? हैंड बम की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है, और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है, बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ, और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरी रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पीती मैं भाई से मिला, मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो, मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। क्या बात है। उत्कर्ष, आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है? जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉट थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया, एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है, तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। हाय अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज। सर आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को, और इस टाइम इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब 22 दिन में। वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट। शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने। अब शारिक सर, हाय शारिक सर, यो अब शारिक सर यहाँ पे हाँ हाय फैनिल, हाय। हेलो सर, हाय। सो आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, कि कभी-कभी बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म? We don't try. I mean, वो governments if they'll give it, so we'll put in applications. But वो जो process है, वो जो लगेगा, अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, तो that's up to the government. I urge you all to write saying, please make it tax free so more people can see it. Thank you. Hi guys, Nikita here from India Forum. सत श्री अकाल तारा जी। पहले तो थैंक यू फॉर मेकिंग गदर 2, वी रियली लव्ड इट। सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जिस हैंडपंप वाले सीन की बात कर रहे हैं,
तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए। लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये। तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। I agree. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। बाजी, सॉरी, आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जो गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माय माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर आल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out on social media really translated for our film also, so thank you for that. सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी भाजी इधर। सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन। सिमरन सिंह from DNA, बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म, सारे तुम रिकॉर्ड तोड़ छोड़ गदर 2 ने। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, हाउ डू यू लुक अपॉन टू द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस बॉक्स ऑफिस? मतलब इन 3 days तो करियर जितनी फिल्म आई उस तो वध कर गदर 2 निकली है, एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव जुबलीज एंड दा एक सक्सेस बन जाती। नाउ वी हैव 3 days वी आर हैविंग अ सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस?